पे अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, टीचिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप विच शुड बी डील्ड विथ कॉर्पोरेशंस गिवन बाय डैश, ब्रूबुचर, गेज, महात्मा गांधी या फिर नेल्सन मंडेला। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपका समय शुरू हो रहा है अब। सोचिए, सोच के बोलिए, डायरेक्ट जवाब मत दीजिए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी वेरी गुड। तो आंसर आ गया है, डेट इज ऑप्शन बी, गेज। वेरी गुड। That is what gauge. Teaching is a process of relationship which should be dealt with the corporation given by gauge. Very good शारदा, एकदम perfect answer. So आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। You got 2 marks for a correct answer. तो जब आपका टोटल हो जाएगा, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी चेक कर लीजिएगा कि कितने लोगों का राइट और कितने लोगों का रॉन्ग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A station teaching, not a station, actually it is a station teaching where 2 teachers, I'm sorry, it's a mistake. A situation where 2 teachers work on a class last together known as dash. A situation where 2 teachers work on a class last together is known as dash. Station teaching, cooperative teaching, micro teaching या मैक्रो टीचिंग। I hope time is visible. सर ऑप्शन डी, मैक्रो टीचिंग। Option D is macro teaching, micro, not micro. Still, you have a time. Is it micro, macro, or any other thing? Read it properly and give the answer. Sorry. Time's up.
नाउ क्या बोल रहा है? अ सिचुएशन वेयर टू टीचर्स वर्क ऑन अ क्लास लास्ट टुगेदर इज नोन एज कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग का मतलब क्या होता है? जब दो टीचर मिलके किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सिखा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, that is known as cooperative teaching. So I hope answer you understand how cooperative teaching. Understand those who are present? Yes or no? Yes, sir. Okay. Question number 3. Phase, also known as implementation phase, is dash. Pre-active phase, interactive phase, post-active phase, or all the above. Till time you have got 2 marks, so your time starts now. Sir, option B, interactive phase. Very good, very good. Perfect. So that is what interactive phase. Now, what is phase of the teaching? As we have already discussed in our sessions, basically there are 3 phases of teaching. Number 1, pre-active, that is planning. Then interactive, that is actual implementation, and third one is post active. Can anyone tell me what is post active? What is another name of post active? What we can say to post active? Evaluation stage. Very good, perfect. Evaluation phase, perfect, ekdam right. So 2 plus 2 equal to 4 marks till now out of 6, but still time is there. Question number 4. Basic requirement includes dash. Basic requirement includes dash. Subject matter, classroom, teacher, all the above. बहुत अच्छी तरह से देखेंगे. Basic requirement includes dash. Your time starts now. Sir, option D, all of the above. Very good, very good. All the above. Now, why all the above? As you have given the answer, but let the time over, because those who will see the recording, they will be in a position to give the answer. But as this is for our class, so I have to stop it now. Basic requirement includes dash, subject matter, classroom, teacher. Now, what points are included in basic requirement of teaching? Can you tell me what are the basic requirements? Teacher, learner, environment, anything else? Infrastructure. What next? Discipline. And last is
relationship of teacher and student. So that is what basic requirement includes: subject matter, classroom, teacher, all the above. Perfect. Question number 5. Dash is propounded memory level of teaching. Dash is propounded memory level of teaching. Maurice 1968, Maurice 1967, Maurice 1966, or Maurice 1967, 65, sorry. Your time starts now. Hello friends, welcome to your own I hope YouTube channel, time- Dr. Vinod Chandwani, a station study for NTA UGC NET. You will learn NTA UGC NET for paper 1, that is teaching and research aptitude, and paper 2, that is commerce and management. Take advantage of live sessions. How? It's very simple, very simple. Subscribe, share and like. I hope time is visible to you, Sharda. Yes, sir. Okay, okay. Those who missed, I will upload the recording in the Google Classroom, and you do it by tonight. I will delete it, so please do it by today itself. Okay, I will delete it by tomorrow itself. Don't worry. Sir, I think option C. Option C. C, लास्ट आंसर. जो बता देंगे उसको लॉक करूंगा, और उसके बाद ओनली 17-16 सेकेंड्स मोर. Yes, sir. Option C. लॉक कर दूं? जल्दी बोलिए. Yes, sir. ओके, योर टाइम्स अप ऑल्सो. ऑप्शन सी गलत जवाब है. ऑप्शन इज बी, मोरीज 1967. अगर मैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करूं तो हमने पढ़ा है कितनी लेवल्स ऑफ टीचिंग होती है, बताइए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग आर देयर? 1 memory level teaching, 2 understanding level teaching, 3 Reflective level teaching. राइट. सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेमोरी लेवल की, तो मोरीज ने दिया है 1967 में, यूएलटी दिया है मोरीजन, और रिफ्लेक्ट लेवल ने किसने दिया है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे चल के एमसीक्यू आ सकता है. सो आंसर इज व्हाट? बी. तो आपकी अभी तक 6 मार्क्स हैं. 2 आंसर जो हैं, मतलब 2 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुके हैं. ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए कहां पे हमारी मिस्टेक हो रही है. थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग इज नोन एज डैश लेवल ऑफ टीचिंग. Thinking deeply about something is known as dash level of teaching. Memory level, understanding level, reflective level, or all the above.
आउट ऑफ 10 आपके कम से कम 7 तो राइट होने ही चाहिए, क्योंकि आपने हर एक लेक्चर अटेंड किया है सब लोगों ने, तो आपका एक भी एक्चुअली रॉन्ग होना नहीं चाहिए, बट हो रहा है तो मैक्स टू मैक्स मतलब कम से कम 7 तो राइट होने चाहिए. Sir, option B, understanding. Option means your answer is B, right? B, understanding. लॉक कर दूं? Yes, sir. Okay. Answer B, that is understanding, is wrong answer. Answer is reflective. हमने पढ़ा है मेमोरी लेवल इज व्हाट, थॉटलेस टीचिंग, और अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत थॉटफुल होता है, विथ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो द कंसेप्ट, बट रिफ्लेक्टिव मीन्स डीप थिंकिंग. Understanding means what? Deep thinking. So that is what we should understand. Deep thinking is nothing but is known as reflective level of teaching. Still again you have a 6 marks, 3 right, 3 wrong. So up to now you have a 50%. आगे बढ़ते हैं. Dash is a collaborative teaching method. Dash is a collaborative teaching method. Station teaching, macro teaching, micro teaching, या none of the above. Am I audible? Yes, sir. Okay. Because now just question, a point came that the internet is unstable. Dash is a collaborative teaching method. Station teaching, macro teaching, or none of the above. Your time starts now. Basically this part we have not done, so but still you should give the answer. This part tomorrow we are going to start in our session, but try to give the answer. Sir, option B. Option B. Sir, I guess. macro teaching, right? Yes, sir. Okay, the answer is wrong. Answer is D, none of the above, because it is known as parallel teaching. What is parallel teaching? Of course, we will do in the detail tomorrow in the lesson at 8 o'clock.
And please inform me how many questions we have done in profit and loss also, as we will continue profit and loss tomorrow also with the teaching. पैरेलल टीचिंग का मतलब होता है जब दो टीचर एक साथ मिलके पढ़ाते हैं जॉइंट लेसन को, दैट इज नोन एज पैरेलल टीचिंग. सो आंसर इज नन ऑफ द अबव. 7 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, 3 राइट हैं, 4 रॉन्ग हैं. मैं अगेन रिमाइंड करवा रहा हूं कि कहाँ पे आप लैकिंग बिहाइंड हो, थोड़ा चेक करिए. यूर करंट मार्क्स आर 6. Steps in micro teaching are dash. Steps in micro teaching are dash. Teacher feedback plan. Teacher feedback plan. Which option is correct? 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 and 1 only. Your time starts now. Sir, option C. Option C. That is 3 1 and 2. So very good. This is a correct answer. Why it is a correct answer? Because micro teaching means teaching जो हम करते हैं वो अपने फ्रेंड्स या जो हमारा फेलो मेंबर्स होते हैं या छोटे छोटे क्लास के बच्चों में, और बीएड लेवल पे या जो हमारा मेंटोर टीचर होता है वो चेक करता है कि हम लोगों का पढ़ाने का कैपेसिटी कैसा है. मैंने ऑलरेडी माइक्रो टीचिंग यूट्यूब पे सिखा दिया है. ऑफ कोर्स यहाँ पे जब हमारा टाइम आएगा हम हमारे लाइव सेशन में भी सीखेंगे, बट यूट्यूब पे मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है. व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ मैक्रो, दोनों करवा दिया है. स्टेशन टीचिंग ये सब मैंने ऑलरेडी करवा दिया है. तो पहले टीचर प्लान करेगा, फिर टीचिंग करेगा और उसके बाद उसकी क्या लेगा, फीडबैक. क्या लेगा, फीडबैक. सो प्लान, टीचिंग एंड फीडबैक. तो ये क्वेश्चन आपका राइट है. इसी के साथ आपकी मार्क्स हो गई 8. इसी के साथ मार्क्स हो गई 8, यानी कुल मिला के 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हुए हैं. आपकी 8 है, यानी अभी भी आप 50% पे हो. अनमोल इतना लेट क्यों? सॉरी सर, एक्चुअली काम हो गया था तो मैं उधर चले गया था सर. ठीक सो है, मैं सॉरी. रिकॉर्डिंग भेजूंगा गूगल क्लासरूम पे आज के रात, देख लेना आप लोग. जी 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 सर. मेट सिंह को भी मैं बता दूंगा, विजय को भी बता दूंगा मैं, बाकी जी सबको जी भी. सर. क्वेश्चन नंबर 9. बेसिकली देयर आर डैश टाइप ऑफ टीचिंग लेवल्स अवेल्स. टोटल मिला के सर कितने प्लीज. प्रकार की टीचिंग लेवल्स होती हैं? नो नीड टू गिव आंसर टिल आई विल स्टार्ट अ पोल. सोच समझ के जवाब दीजिए सब लोग. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Sir, option B. ऑप्शन बी. शारदा सर कह रही ऑप्शन बी ऑप्शन 3. बी. अनमोल बी 3. बी. दोनों जवाब दे रहे जी हैं सर. बी. हालांकि सेकंड्स खाली 13 हुए हैं तो हमको पोल स्टॉप करना पड़ेगा, और जवाब बिल्कुल सही है बी. थोड़ी देर पहले हमने किया था मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्ट लेवल टीचिंग. वेरी गुड. आज का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है. रिफ्लेक्ट लेवल टीचिंग, रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय डैश. हंट, मोरिजन, ऑल द अबव. वापस से क्वेश्चन सुनेंगे. रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय हंट, मोरिजन, ऑल द अबव. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर सी. सी. ओके. अनमोल कह रहे हैं सी. ओके. शारदा आपकी अभी तक मार्क्स हो गई हैं 10, और अनमोल आपकी मार्क्स हैं 2.
Sir, option C. ऑप्शन C. सी यानी सेम अनमोल के जैसा आप जाना चाहते हो। Yes, फाइनल sir. आंसर दोनों का लॉक कर दूं? जी सर। पक्का शारदा, फाइनल आंसर पूछ रहा हूं मैं। Yes, yes, sir. ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे लेवल्स ऑफ टीचिंग में, आपने ध्यान नहीं दिया शारदा, आप थे भी। देखो मैंने बताया था मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो मोरीज ने बताया था, और अंडरस्टैंडिंग मोरीजन ने। रिफ्लेक्ट लेवल पूछ रहा है तो वो कौन बचा? हंट। तो किसने दिया है वो? हंट ने। तो आपका आंसर जो है वो होगा हंट। रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ टीचिंग गिवन बाय हंट। मोरीज दिया है मेमोरी लेवल टीचिंग, मोरीजन दिया है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, और हंट ने दिया है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। सो यहाँ पे अगर हम टोटल 10 क्वेश्चंस लेंगे तो 10 इंटू 2 दैट इज 20। आउट ऑफ 20 अगर हम जो लाइव स्टूडेंट की बात करेंगे शारदा तो है 10 मार्क्स, अनमोल 4 मार्क्स, बाकी के लोग तो हैं ही नहीं क्योंकि आज टेस्ट है। लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग जो है गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। आज का दिन भी रहेगा, कल का दिन रहेगा, कल रात को मैं डिलीट कर दूंगा। तो जितने भी लोग एब्सेंट हैं प्लीज़ सबको रिक्वेस्ट है कि आप गूगल क्लासरूम से ये डाउनलोड करके या वहाँ पे ही जाके चेक कर लेना और स्टार्ट कर देना सेशन। कुछ भी डाउट है तो बता देना मुझे। और कल हमारा लेक्चर 8 o'clock रहेगा, अभी मैं ही लूँगा, देखेंगे सर को अगर आते हैं ठीक है, नहीं तो मेरा कंटिन्यू रहेगा। मंडे ट्यूसडे हमारा पेपर 1 और जैसे चालू है। वेडनेसडे थर्सडे हमारा रहेगा लीगल एस्पेक्ट। फ्राइडे और सैटरडे हमारा रहेगा दैट इज व्हाट अकाउंट्स। मैं अभी अकाउंट्स भी स्टार्ट करने वाला हूं क्योंकि अकाउंट्स थोड़ा बड़ा सा है। तो याद रखिए अगर मान लो बाय चांस कभी मुझे कुछ काम हो गया तो उसका कॉम्पेंसेशन मैं संडे को करूंगा। तो सैटरडे आपका लेसन होगा 45 मिनट्स, या फिर अगर मान लो सैटरडे में नहीं रखूंगा लेसन तो सैटरडे पूरा टेस्ट होगा, क्योंकि आपने देखा टेस्ट को भी करने के लिए आधा घंटा हमारा लेक्चर रहेगा और आधा घंटा हमारा टेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्राइडे भी तो लेक्चर है हमारा अकाउंट्स, सैटरडे भी हमारा अकाउंट्स लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो जो मतलब जो भी गलत आंसर है आपके प्लीज वेरीफाई करो और मेहनत करो कि हमारा आंसर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि कभी भी जी सर। नोटिफिकेशन आ सकता है अगले एग्जाम का। प्रिपरेशन करना अभी से ही शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे कल दैट इज व्हाट रात को 8 बजे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड जी नाइट। सर।